Hope all of you are doing well, right, and studying well. Okay, guys. So how's the studies going on? Completed with the chapter? Chapter complete कर लिया है सबने? Right. तो revise with the whole part. Questions attempt करने शुरू कर दिए हैं. Okay, everyone. Right. So we were talking about the lacoprone in the previous class. Right. फटाफट से why lacoprone is called as a negative regulating operon. जल्दी से. फटाफट से आंसर मिल जाए मुझे. Why lacoprone is said as negative regulating operon. इसे हम क्यों कहते हैं? Negative regulating operon. Yes, everyone. Why we just name it as the negative? Normally it remain in the negative regulation. Okay, do you expand it more? Right, normally ठीक है हमारे पास negative regulation में रहता है, no doubt in that, but हम इसे negative regulated through lac hygiene. Yes, because there is being the one that is because of the constitutive expression of the lac hygiene. अगर correct answer में दूँ तो इसमें मेरे पास क्या जाएगा? Because of the constitutive expression of the lac hygiene. Lac hygiene constitutively express करता रहता है ना, regularly express करता रहता है. Right, इसी वजह से हम लेके चलते हैं. It is being following the negative regulation. Negative regulation follow करता है. Right, समझ आया point? Right, so that's a constitutive expression of the lac hygiene. Right, okay, which enzyme is responsible for the catabolism of the lactose, for the breakdown of the lactose? Which enzyme is responsible for the breakdown of the lactose? Lactose के breakdown के लिए हमारे पास कौन सा enzyme responsible होता है? We say the enzyme responsible for the breakdown of the lactose is beta galactosidase. Very good. Right, beta galactosidase synthesized by which of the gene? कौन सा gene इसको synthesize कराता है हमारे पास? Right, which gene is going to synthesize it? जल्दी जल्दी आंसर मिले. Be active in the class, everyone. Lac Z, Z, Y नहीं, lac Z, lac Y. हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर? Right, Z by A पढ़ा था ना, तो lac Z, lac Y, lac A. Lac Z beta galactosidase, lac Y हमारे पास permease, lac A हमारे पास transacetidase. यही तो हम सिस्टम पढ़ते हैं पूरा, राइट, जहाँ पे हम तीनों सेट ऑफ जीन्स को पढ़ते हैं. Done. Okay, which is called as the inducer of the lacoprone? Lacoprone का inducer कौन है हमारे पास? Which is called as the inducer of the lacoprone? Quickly. Inducer of the lacoprone. क्या हो गया everyone? Right, lactose. Very good. Lactose is an inducer of the lacoprone. Right, lactose हमारे पास inducer की तरह काम करता है. And lactose will bind to the promoter or to the operator or to the repressor. Lactose will bind to promoter, operator or repressor. किससे bind करता है हमारे पास lactose? Repressor. Very good. It binds to the repressor protein, which hinders its ability to bind to the operator. जिसकी वजह से वो operator से bind नहीं कर पाता. तो यही हमारे पास process चलता है. That is what we say as a complete process for the lacoprone. Understood यहाँ तक का point? Right. Okay, everyone. Right. So कोई doubt अब यहाँ तक सबसे पहले? Any specific doubt to anyone in the topic or in any of the concept? Genetics, हाँ genetics में start कर रही हूँ. ट्रिपोपरॉन एक बार कंप्लीट करा दूँ, राइट, फिर मैं आती हूँ जेनेटिक्स के. डबल कर्व, अच्छा, डाइऑक्सी ग्रोथ की बात कर रही हूँ, राइट. पॉजिटिव रेगुलेशन, ओके. हाँ, जेनेटिक्स की डाउट में मैं आऊँगी बच्चा, वेट. जेनेटिक्स के डाउट में आप सारे पूछूंगी. बस एक बार मैं लैकोप्रॉन और ट्रिपोपरॉन पूरा करा दूँ, फिर आते हैं. एलोलैक्टोज फंक्शन. नाउ सबसे पहले हमारे पास डाइऑक्सी ग्रोथ कर्व, तो ये हमने सबसे पहले मेन पढ़ा था लैकोप्रॉन का. पहले एक बार पॉजिटिव रेगुलेशन पे आ जाता, फिर स्टार्ट. नाउ इन दिस कंप्लीट पॉजिटिव रेगुलेशन हमने कहा हमारे पास एक्चुअली, राइट, सेल
आपको अगर आपने दो चॉइस दी दैट यू हैव टू सेलेक्ट इन बिटवीन द ग्लूकोज एंड लैक्टोज, राइट, whom you are going to select, किसको आप सेलेक्ट करोगे, राइट, तो उसके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज और लैक्टोज में अगर दिया जाए तो वी डिफाइन इट कि हमारे पास बेसिकली सेल की पहली चॉइस जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, ग्लूकोज रहेगी, राइट, उसके बाद सेल किसको सेलेक्ट करेगा, लैक्टोज को सेलेक्ट, राइट। तो अब सेल ने क्या किया देखो बेटा, राइट, इस कर्व के हिसाब से, नाउ स्ट्रेट इन दिस कर्व, राइट, अब बहुत ध्यान से इस कर्व को देखना। हमने इस कर्व के अंदर ये कहा कि इस पॉइंट पे आपने सबसे पहला ये जो पॉइंट दिया, इसमें आपने ग्लूकोज की कंसंट्रेशन एट मैक्स दी है सेल, राइट, ग्लूकोज भी मैक्स में प्रेजेंट है, लैक्टोज भी मैक्स में प्रेजेंट है, राइट, तो ग्लूकोज लैक्टोज मैक्सिमम वैल्यू पे। अब आपने कहा धीरे धीरे सेल ने क्या किया, सबसे पहली चॉइस, फर्स्ट चॉइस जो थी सेल, राइट, दैट इज गोइंग टू बी दी ग्लूकोज। अब पहली चॉइस ग्लूकोज थी तो सेल ने लैक्टोज से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे ग्लूकोज को चुना और ग्लूकोज को यूज करता चला गया। ग्लूकोज को यूज करते करते बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ी, एक्सपोनेंशियली बढ़ी, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया जब ग्लूकोज की ग्रोथ बिल्कुल ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बिल्कुल मिनिमम हो गई। तब बैक्टीरिया को डिसाइड करना पड़ा कि इट हैज टू मूव टू दी, राइट, सैचुरेबल फेज पे मूव करना पड़ेगा, राइट, या फिर उसको बेसिकली वहीं पर अपने ही आपको अपनी ग्रोथ को क्या करते हैं, वहीं पर डिक्लाइन फेज में चला जाए, डेथ फेज में चला जाए, राइट, ऑन दैट ग्राउंड, राइट, उसका एक पॉइंट आ गया जहां पर ग्लूकोज मिनिमम में। अब वो मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ने बेसिकली स्टार्ट कर दिया पॉजिटिव रेगुलेशन लैक्टोज का, और लैक्टोज का पॉजिटिव रेगुलेशन स्टार्ट होते ही लैकोप्रोन का सॉरी पॉजिटिव रेगुलेशन स्टार्ट कर दिया, और लैकोप्रोन का पॉजिटिव रेगुलेशन होते ही भले ही अगर सेल के अंदर एलोलैक्टोज की कंसंट्रेशन कम है या सेल के अंदर हमारे पास कंटेंट लैकोप्रोन को रन करने का कंटेंट कम है, राइट, तो अब इसकी वजह से लैकोप्रोन बड़ी जल्दी से चल जाएगा, राइट, जितनी जल्दी से लैकोप्रोन चलेगा उतना जल्दी परमिएज की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू होगी। जब परमिएज बढ़ना शुरू होगा तो धीरे धीरे लैक्टोज अंदर आना शुरू होगा, लैक्टोज अंदर आना शुरू होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज और ट्रांसस्टाइलेज वर्क करके एटीपी बनाएंगे और बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती रहेगी, राइट। तो हमने कहा बैक्टीरिया फिर से अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देगा, राइट। अब जैसे ही ग्रोथ को स्टार्ट किया देन एट अ पॉइंट, एक पॉइंट फिर आ गया हमारे पास जहाँ पर लैक्टोज भी खत्म हो गया, अब तो उसके पास कोई ग्रोथ पॉइंट चॉइस नहीं बची है, तो जिस पॉइंट पे आके उसके पास ग्लूकोज एब्सेंट हो गया और लैक्टोज भी आपका लिमिटिंग कंडीशन में चला गया, राइट, तो आपने उसे नाम दे दिया बैक्टीरियल सेल एंटर कर गया किस ग्रोथ में, स्टेशनरी फेज, राइट, इट विल एंटर इनटू द स्टेशनरी फेज में एंटर करके और अपने आप को उसे सैचुरेट कर लिया यहाँ पर, राइट, कि दिस इज द सैचुरेबल पॉइंट जहाँ पर वो सैचुरेट हो चुका है। अब समझ आया पॉइंट यहाँ तक एवरीवन, अंडरस्टूड टिल हियर, राइट, सो दिस इज व्हाट वी स्टेटेड टिल दिस पॉइंट, राइट, ये हमने यहाँ तक स्टेट किया था एज अ डायोक्सिक कर्व। एवरीवन क्लियर विद द डायोक्सिक कर्व एंड द रेगुलेशन स्टेप, राइट, क्लियर हुआ कुछ आगे, राइट। अब हमने कहा बच्चे जब ये डायोक्सिक ग्रोथ को हमने यहाँ पर पढ़ा, राइट, तो इसी में हमने कहा ग्लूकोज ने काम क्या किया, तो ग्लूकोज की सिर्फ मेन चीज लो कंसंट्रेशन, राइट, हाउ लैक्टोज, देखो ग्लूकोज अगर लो कंसंट्रेशन में है ना अंकुर भाई, मैं समझाती हूँ चलो, राइट, जब ग्लूकोज मेरे पास लो कंसंट्रेशन में तो लैकोप्रोन पे पॉजिटिव रेगुलेशन शुरू हो गया, किस तरीके से, राइट, कि जब ग्लूकोज लो कंसंट्रेशन में है तब हमारे पास ग्लूकोज की वजह से सीएमपी की प्रोडक्शन हुई, साइक्लिक एमपी ने जाके सीएपी या सीआरपी प्रोटीन की प्रोडक्शन करा दी। अब सीएपी सीआरपी प्रोटीन जाके ऑपरेटर से बाइंड कर, एंड व्हेन सीएपी सीआरपी बाइंड्स टू द ऑपरेटर, ऑपरेटर से बाइंड करने की वजह से, राइट, उसने क्या कर दिया यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर साइट पे बाइंड करा दिया। आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही प्रमोटर साइट पे बाइंड कर गया, ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चरल जीन का इंक्रीज, बिकॉज स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हुआ, E1 E2 E3 बनने लगा, E1 E2 E3 के बनते ही हमारे पास E2 का कंटेंट सेल में बढ़ गया, राइट, विद इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ द E2, जैसे ही E2 का कंटेंट सेल में बढ़ा तो परमिएज इटसेल्फ एक्ट एज एन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, परमिएज तो खुद ही एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की तरह काम कर रहा है, राइट, और अगर परमिएज एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की तरह काम कर रहा है तो इट विल जस्ट वर्क ओवर देयर एंड अलाउ द एंट्री ऑफ, इसने किसकी एंट्री अलाउ कर दी, राइट, इट अलाउ द एंट्री ऑफ द लैक्टोज इनसाइड, लैक्टोज अब अंदर आने लगे, लैक्टोज के अंदर आते ही लैकोप्रोन इंड्यूसर क्योंकि अंदर आ गया तो रिप्रेसर जो बचा कुछ था उसका भी काम हमने खत्म कर दिया, वो भी बाइंड नहीं कर पाएगा, तो लैकोप्रोन कंप्लीटली स्विच ऑन मोड में चला गया, राइट, बहुत ज्यादा अमाउंट में बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज ट्रांसस्टाइलेज बढ़ता गया, जितना लैक्टोज था वो सारा का सारा अंदर आ गया, सबका यूटिलाइजेशन होता गया, बैक्टीरिया की ग्रोथ मैक्सिमम रेट पे इंक्रीज, समझ आया पॉइंट, everyone completed with the positive regulation, done, right, अब समझ आ गया यहाँ तक, राइट, एलोलैक्टोज, अब बेसिकली मान लो जब ग्लूकोज का कोई रोल नहीं है, राइट, लेट अस सपोज जब ग्लूकोज का कोई रोल नहीं है तब हम कहते हैं कि हमारे पास काम करने वाला, राइट, एक एलोलैक्टोज इज एन एलोमेरिक फॉर्म, राइट, एलोमर्स अब क्या होता
राइट। जैसे हम आइसोमर्स पढ़ते हैं ना, वैसे ही स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से बनते हैं एलोमर्स, राइट। तो एलोमर जो होता है ना, जब लैक्टोज बहुत ज्यादा, लेट्स सपोज एक ऐसी कंडीशन है, राइट, जहां पर हमने ये कहा कि लैक्टोज बहुत एक्सेस कंडीशन में, एक्सेस कंसंट्रेशन में सेल में प्रेजेंट, जब लैक्टोज बहुत एक्सेस कंसंट्रेशन में सेल में प्रेजेंट है, उस टाइम पे, राइट, उस टाइम पे एक पॉइंट आया कि सेल ने थोड़ा सा लैक्टोज ना बचा के रख दिया, राइट, एज अ रिजर्व वॉल्यूम की तरह, एक रिजर्व कंटेंट की तरह अपने अंदर, और वो रिजर्व कंटेंट को लैक्टोज की फॉर्म में नहीं रखा, उसको उसकी इनएक्टिव फॉर्म में रखा, विच इज एलोलैक्टोज, राइट। वो इनएक्टिव फॉर्म है एलोलैक्टोज, क्योंकि वो लैक्टोज के आगे काम नहीं कर सकता। अब पॉइंट क्या आया, एलोलैक्टोज जो बचा हुआ है, लेट्स सपोज सिर्फ 0.1%, 0.2% है, जब लैक्टोज ज्यादा हुआ, राइट, जब लैक्टोज बाहर ज्यादा है, तो लैक्टोज थोड़ा थोड़ा डिफ्यूजन से अंदर आ रहा है, प्लस एलोलैक्टोज का 0.1% ने लैकोप्रोन को एक बार मान लो चला दिया, 100 में से एक बार चल गया, परमीएस का कंटेंट बन गया। परमीएस के एक दो यूनिट भी जो बने ना, वो एक दो यूनिट बन के भी उन्होंने जाके क्या काम कर दिया, परमीएस ने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बना दिया, बाहर से दो मॉलिक्यूल लैक्टोज के और आ गए, तो अब दो बार लैकोप्रोन और चल गया, और दो परमीएस बन गए, फिर परमीएस बनने की वजह से और दो लैक्टोज अंदर आ गए, धीरे 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 परमीएस का कंटेंट बढ़ता गया, लैक्टोज अंदर आते गए। तो लैक्टोज तो इंड्यूसर की तरह काम करे, लेकिन एलोलैक्टोज इज एन एक्टिवेटर, राइट, लेकिन हम उसे कहते नहीं है बेटा एक्टिवेटर, बस पॉइंट ये। अब क्लियर हुआ? एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट्स द फंक्शन ऑफ द एलोलैक्टोज? यस गाइस, तो एलोलैक्टोज इज एन एलोमेरिक फॉर्म, जो हर जगह मिलेगा जरूरी नहीं है, बट यस इट कैन बी फाउंड, राइट। तो एवरीवन कंप्लीट विद द डायोक्सिक ग्रोथ, राइट, उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर एलोलैक्टोज, राइट, एंड द अनदर वन पॉजिटिव रेगुलेशन, यहाँ तक के सारे पॉइंट्स कंप्लीटेड हैं, डन, गुड, राइट। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, गुड, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर, लैकोप्रोन यहाँ हमारे पास फिनिश हुआ। अच्छा चलो मुझे एक कंडीशन बताओ, नंबर फर्स्ट, ग्लूकोज इन हाई, लैक्टोज इन लो, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन आपको मुझे बताना है, हाई, लो या मीडियम, यू हैव टू टेल मी हाई, लो और मीडियम रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये मैं कंडीशंस लिख रही हूँ, जो फटाफट से बताते चले जाओ। They are for lac-opron beta, not for positive regulation, for lac-opron. हाँ जी, ओके, एक साथ मुझे चारों का आंसर देना जरा। सिंपल है, ओके, so I get one answer from Rana, else people, okay Abhishek,
वेरी गुड। ओके गाइस, तो अब पहले कंडीशन में तो लैक्टोज कम है, ग्लूकोज ज्यादा है, ठीक है। अब लैक्टोज कम है, ग्लूकोज ज्यादा है, तो लैक्टोज कम है, इंड्यूसर है नहीं वैसे भी, ग्लूकोज ज्यादा है वैसे भी काम होने नहीं देगा, राइट। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास लो वी विल से रिड्यूस रेट। ग्लूकोज ज्यादा, लैक्टोज भी ज्यादा, लेकिन ग्लूकोज भी ज्यादा, और अगर ग्लूकोज भी ज्यादा और लैक्टोज भी ज्यादा, तो हमारे पास वापस से कंटेंट इज गोइंग टू बी लो, राइट। हाई नहीं होगा बेटा, क्योंकि अब यहाँ पर ग्लूकोज इज द फर्स्ट चॉइस। समझ आ गया? ग्लूकोज कम, लैक्टोज ज्यादा, हाई। ग्लूकोज कम, लैक्टोज कम। अब फर्स्ट और फोर्थ में से अगर मैं कहूं लो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का मैं अगर ऑर्डर डिफाइन करूं, तो सबसे ज्यादा नेग्लिजिबल, आई कैन से सबसे ज्यादा नेग्लिजिबल कंटेंट मुझे कहां मिलेगा? 1, 1 बेटा 1, राइट। फिर उसके बाद देन इन सेकेंड, एंड देन इन सॉरी थर्ड, कह रही हूँ फोर्थ। समझ आ गया पॉइंट सबको? क्लियर हुआ? राइट। हमने कहा बच्चे फर्स्ट वन ग्लूकोज ज्यादा, लैक्टोज कम है ना, पहली बात तो ग्लूकोज ज्यादा तो जाएगा ही नहीं, और लैक्टोज भी कम है, तो जाता हुआ जो एक्स अमाउंट बनना होगा वो भी नहीं बन पाएगा। फिर अगले में राइट, ग्लूकोज ज्यादा, लैक्टोज ज्यादा, तो चलो ग्लूकोज ज्यादा तो जाएगा नहीं, लेकिन लैक्टोज थोड़ा बहुत तो है जाने के लिए, थोड़ा बहुत तो चलेगा। और लास्ट वाले में ग्लूकोज कम है तो कराएगा, और लैक्टोज हमारे पास कम है, तो ग्लूकोज कम है तो एक्टिवेटर तो लगा हुआ है ना, एक्टिवेटर काम कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव में तो है ही रेगुलेशन, और पॉजिटिव रेगुलेशन में इसका मतलब थोड़ा भी लैक्टोज है उसको भी यूज कर रहा है। अब समझ आ गया पॉइंट? एवरीवन राइट? आगे बढ़ जाओ हम। Lacoperon completed. Now second type of the operon that we are going to state over here, tryptoperon, tryptophan, anabolic operon. वो था लैक्टोज कैटाबॉलिज्म ओपेरॉन, जहां आप लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म कर रहे थे, या आप ट्रिप्टोफैन का एनाबॉलिज्म करोगे, बनाओगे ट्रिप्टोफैन। This operon defines synthesis of tryptophan. कैसे डिफाइन करता है? Let's state about that. Now, in this, ये हमारे पास आर जीन, ठीक है, ये इसका अपना प्रमोटर पीआर, this is the one which is P gene, this is the one as O gene, and this is the site of the structural gene. इसमें 5 जीन्स हैं, ट्रिप ई, एक सेकंड, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी, ट्रिप डी एंड ट्रिप ई। नाम कराती हूँ आपको, ज्यादा इजी, इसके रियल नेम नहीं करेंगे। चलो, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी,
एंड ट्रिप, ठीक है। ये मेरे पास जी। अब हमारे पास काम क्या है, दिस आर जीन when bind with the RNA polymerase it will go for the इसका हमने ट्रांसक्रिप्शन कराया, ट्रांसक्रिप्शन करके वी फॉर्म दी mRNA, mRNA का मैंने ट्रांसलेशन कराया एंड ट्रांसलेशन करके I have the formation of aporepressor and aporepressor is inactive repressor बेटा, एपोरिप्रेसर इनएक्टिव रिप्रेसर। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन बना तो, लेकिन ये इनएक्टिव रिप्रेसर। अब अगर ये इनएक्टिव रिप्रेसर है, इट विल गो एंड वंस मूव टू द ओ साइट नॉट एबल टू बाइंड, ये बाइंड नहीं करता। अगर अभी ओ साइट पे बाइंड नहीं हो पाया तो ये प्रमोटर पे बाइंड हुआ हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज, एंड वंस आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड टू इट विल गो फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। इसने ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन करके इसने पूरा का पूरा एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बना दिया, ठीक है। ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए में 1 2 3 4 5 सिस्ट्रॉन्स आ गए, राइट मेरे पास। अब ये 5 सिस्ट्रॉन में 1 2 3 4 5, राइट। अब इन्होंने मिलके एंजाइम की फॉर्मेशन करी, राइट, ट्रांसलेशन हुआ, राइट, दे टुगेदर फॉर्म द एंजाइम, राइट। अब एंजाइम इन्होंने कैसे बनाया, लेट्स स्टेट अबाउट दैट, उसके बारे में बात करें। तो अब ध्यान से देखना, दे विल गो फॉर द ट्रांसलेशन, हाँ मैं फिर से एक बार बताती हूँ बच्चे, मैंने भी ट्रांसलेशन स्टार्ट कर रही हूँ अभी। तो देखो हमने क्या कहा, राइट, दैट दिस आर द स्ट्रक्चरल जीन सेगमेंट, जिसके अंदर हमारे पास ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी, ट्रिप ए है। इसे ट्रांसक्रिप्शन किया एंड ऑन फॉलोइंग द ट्रांसक्रिप्शन पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बन गया। तो 5 सिस्ट्रॉन आ गई, ई की भी, डी की भी, सी की भी, बी की भी और ए की भी, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए। तो जब मैंने ट्रांसक्रिप्शन किया तो मेरे पास आए यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड ए, पॉलीपेप्टाइड बी, पॉलीपेप्टाइड सी, पॉलीपेप्टाइड डी, पॉलीपेप्टाइड ई, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड ए और बी ने मिलके एक एंजाइम बना दिया, एंजाइम 1। पॉलीपेप्टाइड सी ने एक एंजाइम फॉर्म किया विच इज कॉल्ड एंजाइम 2, एंड डी और ई ने एक एंजाइम फॉर्म किया, एंजाइम 3, ठीक है। अब ये जो तीनों एंजाइम यहाँ तक खत्म, ये ट्रिप्टोफैन फिनिश। अब मेरे पास एक यूनिट है विच इज कॉल्ड क्रोस्मिक एसिड। क्रोस्मिक एसिड इज अ प्रिकर्सर, दिस प्रिकर्सर विल चेंज इनटू ट्रिप्टोफैन, और इसको ट्रिप्टोफैन में चेंज करने के लिए तीनों एंजाइम प्ले करते रोल, E1 E2 E3, एंड अल्टीमेटली ट्रिप्टोफैन प्रोड्यूस। क्लियर? ओवरऑल थोड़ा बहुत समझ आया? देखो मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ जो मैंने यहाँ तक स्टेट किया। आई से ट्रिप्टोफैन इज ट्रिप्टोफैन एनाबॉलिक ओपेरॉन, जिसमें मेन काम है ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस करना। अब आपने इसके अंदर एक जीन आर जीन लगाया, आर जीन के बाद आपने पी जीन, जहाँ आई कह रहे थे ना वैसे यहाँ पर आर है, पी जीन है, ओ जीन है, और बाकी स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन इज हैविंग द 5 जीन्स टुगेदर, 5 जीन एक साथ मिलके स्ट्रक्चरल जीन को फॉर्म करते हैं, जिसमें से ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी, ट्रिप ए आ गया आपका यहाँ पर 5, ठीक है। आपने क्या किया, आर जीन का ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाया, एमआरएनए के बाद आपने ट्रांसलेशन किया, उससे जो रिप्रेसर बना वो आपका एपोरिप्रेसर बना, ठीक है। एपोरिप्रेसर एज इनएक्टिव रिप्रेसर आपने बना दिया। अब जो आपके पास ये इनएक्टिव रिप्रेसर बना, ये इनएक्टिव रिप्रेसर आपका ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाया, इट इज इनएफिशिएंट टू बाइंड टू द ऑपरेटर, राइट। नाउ एज वी से
It is inefficient to bind to the operator, means there is no conformational change at the promoter side. Promoter side पे कोई conformational change नहीं हुआ. And if there is, wait uncle, right, if there is no change in the conformation change in the promoter side, means operator is set free and promoter is set free, right, because of which RNA polymerase easily bind to it. अब वहां से जो ये ट्रिप के 5 जीन थे, इनका प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एक पूरा mRNA बना जिसे हमने पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA का नाम दिया. उस पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA के अंदर हमारे पास 5 सिस्ट्रॉन्स आ गए कैप्ड बाय 5 प्राइम एंड 3 प्राइम UTR. और उसके बाद मैंने ट्रांसलेशन कर दिया. ट्रांसलेशन करके मैंने फर्स्ट से पॉलीपेप्टाइड A बनाई, फिर पॉलीपेप्टाइड B, C, 5 मैंने पॉलीपेप्टाइड बना दी. एज वी नो 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस एप्लीकेबल नहीं है, राइट. तो अब मुझे यहाँ से समझ आ गया कि ये जो मेरे पास सिस्ट्रॉन है, राइट, उसी ने बेसिकली एक पॉलीपेप्टाइड तो बनाई और बाकी की पॉलीपेप्टाइड ने मिलकर एंजाइम बनाया. तो ओवरऑल मेरे पास ओपरॉन यहाँ फिनिश हो गया, जहां पर मैंने कह दिया कि मेरे पास 3 एंजाइम बन गए. अब ये तीनों एंजाइम एंटर हुए इनटू अ बायोकैटालिटिक प्रोसेस. इस पूरी रिएक्शन को आई जस्ट नेम इट एज दी, राइट, इसको मैंने नाम दिया, राइट, बायोसिंथेटिक मैकेनिज्म ऑफ ट्रिप्टोफैन, राइट. तो ट्रिप्टोफैन का बायोसिंथेटिक मैकेनिज्म है, जहां पर आपने क्रॉसमिक एसिड को ट्रिप्टोफैन में चेंज कर दिया, राइट. तो आपने मैकेनिज्म एंजाइम यूज कर लिया. अब आपने ये कहा बच्चे कि ये मेरे पास जो एपो रिप्रेसर है ये इनएक्टिव है, इसका काम है ऑपरेटर से बाइंड करना, लेकिन अभी इनएक्टिव है. तो अब मुझे ये बताओ, ये ओपरॉन स्विच ऑफ स्टेट में है या ऑन स्टेट में है? इज दिस ओपरॉन इज देयर इन द स्विच ऑफ स्टेट और ऑन स्टेट? वेरी गुड, स्विच ऑन स्टेट. इट इज देयर इन द स्विच ऑन स्टेट, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन तो ट्रांसक्राइब कर रहे हैं ना. तो ऑफ में कैसे हुआ बच्चे? ऑफ में तो तब होगा ना जब ट्रांसक्रिप्ट स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे. रिप्रेसर बनने के बाद भी, राइट, आपका यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA बन रहा है, पॉलीपेप्टाइड बन रही हैं, पॉलीपेप्टाइड के बाद पूरा का पूरा आगे का पूरा प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है. तो हम कैसे कहेंगे इट्स इन स्विच ऑफ स्टेट एंड स्विच ऑन ना, राइट. कंटिन्यूअस सप्लाई हैज, देयर इज नो एक्टिव रिप्रेसर. रिप्रेसर है, ये नहीं लिखोगे देयर इज नो रिप्रेसर, ये लिखोगे देयर इज नो एक्टिव रिप्रेसर. आप समझ आया पॉइंट, राइट. निकुंज क्लियर हुआ बेटा ट्रांसलेशन वाला पॉइंट, राइट, डन. अब हमने कहा बच्चे, राइट, वी सेज कौन सा स्टेप बचा? स्विच ऑन वाला, राइट. स्विच ऑन का मतलब अगर मैं ये देखूं, मैंने कहा आर जीन तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेसिंग है, वो एपो रिप्रेसर बना रहा है, लेकिन क्या एपो रिप्रेसर रिप्रेस कर पा रहा है प्रोसेस को? क्या नेगेटिव रेगुलेशन हो पा रहा है प्रोसेस का? वी से अभी, अच्छा ये मुझे पहले ये बताओ, राइट, इज दिस ओपरॉन इज इन एनी रेगुलेशन नाउ? Is this operon is in any regulation now? No, very good. This operon all in any regulation. ना तो कोई पॉजिटिव रेगुलेशन चल रहा है, ना कोई नेगेटिव रेगुलेशन चल रहा है, राइट ना, राइट. ना तो कोई पॉजिटिव रेगुलेशन चल रहा है, ना कोई नेगेटिव रेगुलेशन चल रहा है, राइट. तो अभी तो ओपरॉन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अपना नॉर्मल काम कर रहा है, क्योंकि एपो रिप्रेसर बना, एपो रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाया, राइट. तो हमने कहा इट्स जस्ट अ प्रोसेस जहां पर हमारे पास नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है कि ये पांचों जीन्स जो है हमारे पास, राइट, दे आर गोइंग फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मिंग द पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA, फॉर्मिंग द पॉलीपेप्टाइड आफ्टर ट्रांसलेशन, और प्रॉपर ट्रिप्टोफैन सेल में बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, राइट. ये कंडीशन होती जा रही है. अब समझ आया सबको यहाँ तक का पॉइंट, राइट. तो व्हाई वी नेम इट एज इन अ स्विच ऑन स्टेट. स्विच ऑन स्टेट हमने इसे क्यों कहा है, राइट. अभी आऊंगी अंकुर, मैं उस क्वेश्चन पे आऊंगी बच्चे, मैंने पढ़ लिया आपको क्वेश्चन, राइट. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मंशिका. अब हमारे पास होगा क्या, राइट. लेट अस सपोज बेटा, राइट, दिस operon remain in switch on mode, because of which excess production हो जाएगी E1, E2, E3. excess production होगी. Because of this excess production, there is the excess production of tryptophan. ठीक है. अब हमें तब तक तो प्रॉब्लम नहीं है जब तक ट्रिप्टोफैन हमारे पास ओवरलोडिंग कंसंट्रेशन में नहीं गया,
लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन ओवरलोडिंग कंसंट्रेशन में आ गया तब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैंने कहा यहाँ पर एक्सेस प्रोडक्शन हुई ट्रिप्टोफैन की, इफ ट्रिप्टोफैन count in exceeding concentration, अगर exceeding concentration में हो गया, that is above the optimum, जितना ऑप्टिमम सेल में होना चाहिए उससे ज्यादा, then tryptophan behave as co-repressor, ट्रिप्टोफैन ने बिहेव किया एज अ को-रिप्रेसर। इसका मतलब अब अगर मेरे पास ट्रिप्टोफैन ज्यादा हो गया तो इट बिहेव एज अ को-रिप्रेसर, राइट, को-रिप्रेसर, एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ द फीडबैक रिप्रेशन ऑफ ओपन। यहाँ तक क्लियर पॉइंट? It caused the feedback repression of operon. Operon का feedback repression cause, right? अब कैसे होगा? That we are going to start with. ठीक है, वो अब हम process start करते हैं। यहाँ तक का point सबसे पहले clear हुआ सबको? ठीक है, अभी condition ये है कि tryptophan exceeding concentration में जा चुका है, right? So this is being the one जो हमने बनाया यहाँ पर। आ रही हूँ अभी एक मिनट ये टॉपिक कंप्लीट करने तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, राइट? या आई रिपीट वंस अगेन बेटा इस डायग्राम से, पी ओ ट्रिप ई ना, एज वी सेड, इसके ऊपर देखो, ध्यान से देखना, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, and will lead to the formation of the inactive repressor which is called as aporepressor. अब सेल के साइटोप्लाज्म से उठ के आया यूनिट which is co-repressor which is called tryptophan, and this constitute the overall called as holorepressor. जैसे होलो एंजाइम नहीं पढ़ते, कोएंजाइम और एपोएंजाइम, राइट? एपोएंजाइम क्या काम कर सकता है कोएंजाइम के बगैर? नहीं कर सकता ना, तो काम कब करेगा? जब कोएंजाइम साथ में बाइंड करेगा। तो सेम उसी तरीके से कि जब हमारे पास एपोरेप्रेसर के साथ कौन बाइंड कर गया है? कोरेप्रेसर। This holorepressor is actually an active repressor. ये एक्टिव रिप्रेसर है। अब क्योंकि ये एक्टिव रिप्रेसर है, ये होलो रिप्रेसर जाके हमारे पास बाइंड कर जाएगा टू दी ऑपरेटर, ऑपरेटर से जाके बाइंड कर दिया। अगर इसने ऑपरेटर से जाके बाइंड कर दिया, ब्लॉक कर दिया प्रोसेस, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग यहाँ पर नहीं हो पाई, कन्फर्मेशनल चेंज आ गया। कन्फर्मेशनल चेंज आने की वजह से इनका ट्रांसक्रिप्शन भी आगे का रुक गया, तो नो ट्रांसक्रिप्शन। अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं किया तो कोई पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए नहीं, आगे नो ट्रांसलेशन, नो E1, E2, E3, and ultimately tryptophan synthesis stop। अब समझ आया प्रोसेस क्या किया मैंने इसमें? अब एपोरिप्रेसर का मीनिंग समझ आया था? एपोरिप्रेसर इज, राइट, ध्यान से क्लियर करना, एपोरिप्रेसर इज प्रोटीनेशियस यूनिट synthesized by our gene which is, right, फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक बार। एपो, ध्यान से सुनना अब इसमें,
proteinaceous unit which is synthesized by our gene, but this unit is never able to, it's inactive in nature, as it is never to, until unless a non-proteinaceous unit co-repressor won't, जब तक co-repressor bind नहीं करेगा, and co-repressor called tryptophan, non-proteinaceous, क्यों कह रही हूँ बेटा मैं, क्योंकि Any point to anyone? Right. तो हमने कहा यहाँ पर co-repressor is a non-proteinaceous unit जो हमारे पास वर्क करता है. Right. Because co-repressor non-proteinaceous unit है, वो जाके जैसे ही apo-repressor से bind करेगा, because of that binding, उस binding की वजह से हमारे पास overall process में क्या change आ जाएगा, that वहाँ पर active repressor बन जाएगा. Right. अगर मेरे पास active repressor बन गया, तो एक्टिव रिप्रेसर बनते ही मेरे पास किसकी सिंथेसिस हो जाएगी, राइट, दैट इट विल बाइंड टू द ऑपरेटर, ऑपरेटर से बाइंड करके प्रमोटर में कन्फर्मेशन चेंज पास करेगा. कन्फर्मेशन चेंज होते ही बेटा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर सकता, आरएनए पॉलीमरेज अब प्रमोटर से बाइंड नहीं कर सकता तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता. कैन आई से दैट, एक मिनट क्या हो गया, वॉइस इज ब्रेकिंग. हाँ वो आज ना प्रॉब्लम हो रही है. Everyone, audio is fine. It's clear? Okay, fine. Right. तो बेसिकली हमने यहाँ पर कहा बच्चे कि हमारे पास जैसे वो बाइंड हो गया, राइट, ऑपरेटर से, वैसे हमने कहा यहाँ पर ये फंक्शन हो गया हमारे पास कि इट इज नॉट एबल टू कंप्लीट द होल प्रोसेस, आगे का प्रोसेस, राइट, वो नहीं करेगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो आगे ना तो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा, ना ही ट्रांसलेशन हो सकता है, ना ही एंजाइम की सिंथेसिस होगी, और अल्टीमेटली ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस भी वहीं पर रुक जाएगी. इज इट कॉल्ड एज अ फीडबैक? कैन आई से द प्रोसेस एज द फीडबैक repression, yes or no? Can I state the process that it's a repressible system but under a feedback phenomenon? feedback क्यों है? क्योंकि अगर हमारे पास ट्रिप्टोफैन ज्यादा है तो रिप्रेस कर रहा है ना, अदरवाइज तो रिप्रेस नहीं हो रहा. इंड्यूसिबल रेगुलेशन या रिप्रेसिबल रेगुलेशन? inducible, voice is cracking too much. एक सेकंड रुको यार, इसलिए मैंने आज केमिस्ट्री वाले सर को बोल दिया है कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो क्लास उन्हीं को ही लेनी पड़ेगी आगे, क्योंकि अभी मेरा ना क्रैश में भी यही हो रहा था कि वॉइस बहुत ही क्रैक कर रही थी बीच बीच में. ओके, जस्ट वेट गाइज, आई एम जस्ट चेकिंग नेटवर्क, एक बार मैं नेटवर्क चेक कर लूँ. Is it fine now? Yes guys, everyone clear? Better? Okay. Right. चलो, अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होती है फिर मुझे बताना, ठीक है? राइट. हाँ जी बच्चे, तो अब हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया कि इट्स अ फीडबैक. हाँ मैं ये पूछ रही थी आपसे, इट्स अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन, फीडबैक, रिप्रेसिबल रेगुलेशन, किसमें है ये आपका? कौन सा टाइप का रेगुलेशन फॉलो कर रहा है? विच टाइप ऑफ रेगुलेशन इट इज गोइंग टू फॉलो? पॉजिटिव, नेगेटिव, रिप्रेसिबल, इंड्यूसिबल? नेगेटिव. ओके, फीडबैक रिप्रेसिबल, ठीक है. नहीं, अच्छा, इज इट अ नेगेटिव रेगुलेशन बेटा? नेगेटिव कब होगा? मैंने क्या बताया था नेगेटिव रेगुलेशन में लास्ट टाइम? नेगेटिव, नो, इट्स नॉट अ नेगेटिव रेगुलेशन. यही तो क्लियर करना है.
लास्ट टाइम इसलिए मैंने आपको 3 डेफिनेशंस के पॉइंट्स लिखवाए थे। नेगेटिव रेगुलेशन आप किसी भी ओपरॉन सिस्टम को तब कहोगे जब उसके अंदर स्पेसिफिकली राइट जो प्रोडक्ट उसके थ्रू बन रहा है वो एक्चुअली में उसको रोकेगा। क्या एपोरिप्रेसर खुद रोक पाया? Yes, only tell me that. Is aporepressor able to block the process? No. एपोरिप्रेसर किसकी हेल्प से रोक पाया उसको? कोरिप्रेसर। तो एपोरिप्रेसर कोरिप्रेसर की हेल्प से ब्लॉक कर पाया। एपोरिप्रेसर खुद तो ब्लॉक कर ही नहीं पाया उसको। अगर एपोरिप्रेसर खुद उसको ब्लॉक नहीं कर पाया तो नेगेटिव रेगुलेशन तो नहीं कह सकते ना। क्या इसमें एक बाहर से एक मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी? बाहर से का मतलब ओपरॉन ने तो सिंथेसाइज नहीं किया ना ट्रिप्टोफैन। ओपरॉन ने तो E1 E2 E3 को सिंथेसाइज किया। ओपरॉन का काम था E1 E2 E3 को सिंथेसाइज करना। ये तो E1 E2 E3 बाद में इस बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो गए, राइट? दे गेट इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस। ऑन दैट अकाउंट, उस अकाउंट के बेसिस पे हम ये कहते हैं इट्स बीइंग द वन जो एक्चुअली में फॉलो क्या कर रहा है हमारे पास, राइट? दैट इज अ रिप्रेसिबल सिस्टम। अब समझ आया सबको, राइट? कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन द रिप्रेसिबल सिस्टम में हमने इसे क्यों रखा, राइट? व्हाई वी डिफाइन ट्रिप्टोफैन इज अ, राइट, आपका नॉट अ नेगेटिव रेगुलेशन, नॉट अ पॉजिटिव रेगुलेशन एंड अ रिप्रेसिबल सिस्टम। अच्छा, अब इसमें देखो लैकोपेरोन के टाइम पे हम कर रहे थे, वो शुरू से स्विच ऑफ स्टेट में था। इंड्यूसर के आने से वो ऑन स्टेट में हुआ था, राइट? अग्रीड? ट्रिप्टोफैन के अंदर शुरू से स्विच ऑन स्टेट में, कोरिप्रेसर की आने की वजह से वो किस स्टेट में गया है? स्विच ऑफ स्टेट में गया। ये लाइन क्लियर हो गई सबको अच्छे से? एवरीवन अंडरस्टूड, राइट? कंप्लीट है यहाँ तक का प्रोसेस, राइट? सो अब इसी का अगर हम ओवरऑल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिख लें, राइट? सो वी विल डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ फीडबैक रिप्रेशन। स्टेप बाय स्टेप साथ साथ इसमें नोट करते जाएंगे सब, पूरे के पूरे प्रोसेस में। पहला स्टेप हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिव वे। धनंजय, इट्स नॉट अ प्रोटीन ना, अमीनो एसिड इज नॉट अ प्रोटीन। अमीनो एसिड कैन बी प्रोटियोजेनिक, कैन बी नॉन प्रोटियोजेनिक। पढ़ते हो ना? अमीनो एसिड प्रोटीन नहीं होता। ट्रिप्टोफैन इज एन अमीनो एसिड, राइट? इट्स अ नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट, ठीक है, राइट? फॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिव एपोरिप्रेसर by TRPG, which is going to have constitutive expression. Inability of aporepressor in binding to operator, operator से bind नहीं कर पाए। Binding to operator, leading to continued transcription of structural gene। ट्रांसक्रिप्शन कराया इनका। ट्रांसक्रिप्शन के बाद synthesis of E1, E2, E3 enzyme from pentasistronic mRNA। Can I write pentasistronic बेटा? 5 है ना सिस्ट्रॉन्स मेरे पास, उससे मैंने बनाया, so I can name it as the pentasistronic mRNA। After this, biosynthesis of tryptophan from crosmic acid using
E1, E2, E3 उनको यूज करके, राइट। अब हमने कहा exceeding concentration of tryptophan make it, concentration बढ़ जाएगी, exceed हो जाएगी। हमने कहा exceeding concentration of tryptophan make it work as co-repressor, and co-repressor is amino acid or non-proteinaceous unit, right? Binding of co-repressor with aporepressor and formation of holorepressor. holorepressor बन गया हमारे पास। Binding of holorepressor with operator and conformational change in promoter। promoter में conformational change हो गए हमारे पास। conformational change होते ही switch of state of, this is called as the feedback repressible operon system। कंप्लीट है अब सबको? अभी मैं नीचे ड्रॉप डाउन करूंगी। तभी मैंने कहा मैं एक एक करके दिखा रही हूँ पेज, जिससे नोट नहीं किया वो नोट कर लो, राइट। तो जस्ट वेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स एट ईच पॉइंट। 1 2 3 के पॉइंट्स पहले एक बार देखो। After this 4 5 6 कौन सा बच्चे? हाँ वो रिप्रेसिबल रेगुलेशन ना, मुझे भी बताना ही है। 4th पॉइंट छुड़वाया हो ना मैंने, वो वाला बताऊंगी आपको भी, लिखवाऊंगी अभी इसमें। पहले नोट कर लो पूरा। हो गया नोट सबका? पूरा ट्रिपोपरॉन क्लियर हो गया? अब एक फटाफट से डिफरेंस की टेबल बना दो जरा ट्रिप और लैकोपरॉन में, क्विकली। अ डिफरेंस टेबल बिटवीन ट्रिपोपरॉन एंड लैकोपरॉन। और फिर मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करती हूँ। गिविंग योर 2 minute टाइम गाइस। मेक अ डिफरेंस टेबल इन बिटवीन लैकोपरॉन एंड ट्रिपोपरॉन।
and tell me the differences guys फटाफट से. एंजाइम 5 नहीं है ट्रिप्टोफैन में मंशिका, 5 जीन है बेटा, 5 एंजाइम्स नहीं है. एंजाइम तो इसमें भी 3 ही है. यस, एक एक करके आप पॉइंट बताते चले जाओ. चलो फटाफट से. फाइन, वेरी गुड अंकुर. इंड्यूसर है ही नहीं ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन तो रिप्रेसर हुआ, को रिप्रेसर हुआ बच्चा. नाउ सी फर्स्ट डिफरेंस. अब डिफरेंस मैच करते जाना. ठीक है, वेरी गुड. राइट जैस्मीन, अग्री. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट. अब एक एक पॉइंट करके लिखते चले जाओ और साथ साथ उसी के साथ देखते भी चले जाओ कि कितना ने सही लिखा है. राइट, लैक ओपेरॉन इज अ कैटाबॉलिक ओपेरॉन बच्चा. लैक ओपेरॉन क्या है हमारे पास? कैटाबॉलिक ओपेरॉन. राइट, लैक ओपेरॉन इज अ कैटाबॉलिक ओपेरॉन. ट्रिप ओपेरॉन इज अ एनाबॉलिक ओपेरॉन. पहला डिफरेंस. लैक ओपेरॉन कैटाबॉलिक ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन एनाबॉलिक ओपेरॉन. फाइन. Right, next point. Lacoperon has tricistronic mRNA synthesis. Tripoperon has pentacistronic mRNA synthesis. Lacoperon में 3 ही थे ना हमारे पास, ZYA, यहाँ पर 5 है. तो इसकी वजह से इसे क्या डिफाइन करते हैं? Tripoperon has pentacistronic segment. Completed. ये 2 पॉइंट क्लियर हुए यहाँ तक? Yes. Good, good. Right, everyone. Very good. Next one. Let's get into next category. Lacoperon act as an inducer. Lactose act as an inducer. Lacoperon में lactose act as an inducer. Second one. Tryptophan act as co-repressor. Lactose act as inducer. Tryptophan act as co-repressor. Repressor नहीं लिखना है, co-repressor. ठीक है, right. Next, negative inducible regulation. Lacoperon, negative inducible regulation. फाइन. और नेक्स्ट हमारे पास ट्रिपोपेरॉन में क्या आ गया? फीडबैक रिप्रेसिबल ओपेरॉन. फाइन. राइट, एवरीवन क्लियर विद द डिफरेंसेस? और कोई डिफरेंस बचा इसके अलावा? कंप्लीटेड यहाँ तक. लैकोपेरॉन, ट्रिपोपेरॉन, एवरीवन डन? कंप्लीट. अच्छा, अब मैंने आपको लास्ट टाइम टाइप ऑफ ओपेरॉन लिखवाए थे, नेगेटिव टाइप ऑफ रेगुलेशन लिखवाए थे. नेगेटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन. राइट, अनदर वन वी विल से. राइट, हाँ वो वाला कर सकते हो. ठीक है, स्विच ऑफ स्विच ऑन स्टेट, बिल्कुल ठीक है. राइट, ओके. अच्छा, एक बात बताओ सबसे पहले, व्हाट आर दी जीन्स प्रेजेंट इन देम आर नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर? एग्जैक्टली. तो हमने कहा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव कौन से होते हैं? लग्जरी जीन्स ना. राइट, तो लग्जरी जीन कौन से हैं हमारे पास? इन द कंडीशन दे आर बीइंग डिफाइंड एज द एक्स. एग्जैक्टली.
कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट? और कोई डाउट इसमें? फाइन, तो अब ट्रिप ओपरॉन क्लियर है। अच्छा, अब एक बार टाइप ऑफ ओपरॉन खोलो, फिर लिखे उसके अंदर। ट्रिप ओपरॉन में 4 कैटेगरी बताई थी, सॉरी ओपरॉन में 4 कैटेगरी बताई थी रेगुलेशन की, राइट। नाउ फर्स्ट हमारे पास रिप्रेसिबल सिस्टम, right? Then we will say another which is being there is the inducer system, positive regulation and negative regulation, right? So इसी को ही basically अब state करते हैं, right? Let's move to the topic over here. Okay everyone, बीच बीच में voice आ रही है, कट तो नहीं रही voice? अभी तो ठीक है। ना फोर्थ वाला उसमें लिखूं रिप्रेसिबल सिस्टम। अच्छा, मेरी डेफिनेशन आई जो मैंने बोली थी रिप्रेसिबल सिस्टम की? अच्छा, डेफिनेशन नहीं आई ना, मुझे लग रहा है बीच में हैंग ही हो गया था सिस्टम। नो ना, एमएस आज सुबह से यही नाटक हो रहा है, राइट। ओके, नाउ लिखो इसी में रिप्रेसिबल रेगुलेशन। Repressible regulation. Switch off the state of operon when a repressor molecule from outside the operon means not a part of the operon. A repressor molecule from outside the operon cause repression by binding to inactive repressor of the operon. अब पॉइंट समझ आया? इनएक्टिव रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा, ऑटोमेटिकली उसको वहां पर क्या कर देगा, रिप्रेसिबल सिस्टम में चला जाएगा। अच्छा, को रिप्रेसर की प्रॉपर्टी याद रखना, को रिप्रेसर इज नॉन प्रोटीनेशियस, एपो रिप्रेसर इज प्रोटीनेशियस, ठीक है। रिप्रेसिबल इंड्यूसिबल सिस्टम दोनों में बाहर का मॉलिक्यूल होना चाहिए, सेल बनाए किसी और मैकेनिज्म से या सेल को बाहर से मिल जाए, एनी ऑफ द कंडीशन इज पॉसिबल, ठीक है। उसे आप ये डिफाइन करते हो। एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक बच्चे? पॉइंट कंप्लीटेड है? डन? कोई डाउट इसके अंदर? आगे बढ़ जाएं अब इसमें, राइट। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। एक छोटा सा मॉडल यूकैरियोट्स में पढ़ना है, कोई डिटेलिंग नहीं करनी, नहीं तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स, then we will wind up the topic of the gene regulation. Wind up कर देंगे topic gene regulation, right? Okay. Regulation of gene expression in eukaryotes. Now, we says how come this gene expression in the eukaryotes work? कैसे वर्क करता है ये प्रोसेस, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। नाउ मूविंग टू दिस वन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। वी बेसिकली स्टेट दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम स्टेट करते हैं, राइट, इन द कैटेगरी। सबसे पहले 5 लेवल्स ऑफ रेगुलेशन, बताना फटाफट से 5 लेवल मैंने आपको पढ़ाए थे सबसे पहले। 5 लेवल है रेगुलेशन के, और 5 लेवल में से सबसे एक मेन लेवल भी है,
हमने यूकेरियोट्स का जब पढ़ा था, मैंने इसमें स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, 5 लेवल कौन कौन से हैं। सबसे पहला लेवल मेरे पास कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन रोक दो। अगर मान लो ट्रांसक्रिप्शन मेन है, बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या रोक सकते हैं, वी कैन स्टॉप द प्रोसेस ऑफ दी स्प्लाइसिंग। पहले स्प्लाइसिंग रोकोगे ना, स्प्लाइसिंग, फिर स्प्लाइसिंग के बाद किसको रोकोगे, एक्सपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, राइट, वेरी गुड। एक्सपोर्ट को रोक दिया, उसके बाद ट्रांसलेशन, और अगर ट्रांसलेशन को भी नहीं रोका तो एट द एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, राइट। तो ये हमारे पास प्रोसेस जाएगा जहां पर हम कहेंगे हम 5 लेवल रेगुलेशन के रखेंगे, वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इज द कंट्रोल एट ट्रांसक्रिप्शन। हमने कहा कंट्रोल एट ट्रांसक्रिप्शन is a major level of regulation, right? अब हमने कहा अगर ये रेगुलेशन का मेजर लेवल है तो इसमें से अब हम इसे कैसे करते हैं, इट इज बीइंग डन विद रिस्पेक्ट टू द वन मॉडल, ब्रिटन डेविडसन जीन बैटरी मॉडल। बिकॉज बच्चे ओपरॉन एब्सेंट है यूकेरियोट्स में, operon model is only present for the polycistronic sequences which is there only in the case of the yeast, और वो भी एक ही operon है, वो भी अलग मोनोसिस्ट्रॉनिक पे चलता है और अलग मैकेनिज्म है, उसके अलावा operon है ही नहीं हमारे पास यूकेरियोट्स के अंदर। तो यूकेरियोट्स के अंदर हम एक मॉडल पढ़ते हैं which is called as a Britton Davidson gene battery model, and what this model actually state, ये मॉडल हमें स्टेट क्या करता है, तो we say one is 5 prime to 3 prime and another is 3 prime to 5 prime। आपके पास 5 जीन्स हैं, 5 सेट ऑफ जीन्स आपके पास, एंड दीज 5 सेट ऑफ जीन्स आर प्लेइंग द मेन रोल, ठीक है। ओपरॉन जैसे ही समझना है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग कुछ भी नहीं है इसमें, स्पेसिफिक छोटा छोटा पार्ट है, राइट, बस वही ध्यान से क्लियर करना है। तो हमने कहा ये हमारे पास है, जिसमें से दिस जीन इज कॉल्ड एज द प्रोड्यूसर जीन। ये एक जीन है जिसको मैंने नाम दिया है यहाँ पर, राइट, आई जस्ट नेम इट एज द प्रोड्यूसर जीन, राइट। अब प्रोड्यूसर है एक मेरे पास, एक जीन है मेरे पास यहाँ पर, अनदर वन विच इज कॉल्ड एज द, राइट, रिसेप्टर, इंटीग्रेटर, सेंसर एंड एनहांसर, साइलेंसर, राइट। तो ये मेरे पास एक हो गया, इंटीग्रेटर, receptor, sorry, sensor and receptor, sensor, receptor, enhancer, silencer, ठीक है। अब बहुत ध्यान से, ये 5 सेट ऑफ जीन को मैंने मिला के ये प्रॉपर एक जीन बैटरी मॉडल में डिजाइन करने वाली हूँ। अब इस जीन बैटरी मॉडल में हम क्या एक्सप्लेन करते हैं, वन बाय वन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस प्रोड्यूसर जीन इज व्हाट, इट इज अ स्ट्रक्चरल जीन ओनली which is the monocistronic structural gene which result in the production of functional polypeptide, जो एक फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस करेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट्स अ नॉर्मल वन कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। बस आपने उसको नया नाम दे दिया, यू हैव जस्ट गिवन अ न्यू नेम टू इट, फाइन। नेक्स्ट आया आपके पास एनहांसर एंड साइलेंसर। एनहांसर एंड साइलेंसर इज अ जीन which produces enhancer A part और B part is silencer, जो इनमें से दो में से कोई एक चीज को प्रोड्यूस करेगा। एनहांसर इज द वन which will switch on the process, जो स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को स्विच ऑन कर देगा। साइलेंसर मीन्स which will silence or we can say switch off the process। ये आपने एक एडिशनल दी है, ये रेगुलेटर जीन नहीं है, ये एक आपने एडिशनल दिया, ठीक है, राइट। एनहांसर साइलेंसर, अब एनहांसर साइलेंसर को जज करने के लिए
जो आपने प्रमोटर सेगमेंट दी है, प्रमोटर सेगमेंट इज सेंसर, जो सेंस करेगा। फिर जिस पे जाके एनहांसर साइलेंसर बाइंड करेंगे, दैट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर इज द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिवेटर और रिप्रेसर। अब प्रोसेस का थोड़ा ध्यान से समझना, कैसे एनहांसर साइलेंसर काम करता है ना उसी। अगर मान लो बच्चे मेरे पास एक एनहांसर का मॉलिक्यूल बना, ये एनहांसर का मॉलिक्यूल है, एनहांसर का मॉलिक्यूल जाके बाइंड करता है इंटीग्रेटर से, जिसकी वजह से इंटीग्रेटर प्रोड्यूस करता है एक्टिवेटर को, और एक्टिवेटर जाके बाइंड करता है रिसेप्टर को। कंसेप्ट समझ आया? वंस अगेन आई एक्सप्लेन। फर्स्ट कंडीशन देखो, एनहांसर जीन produces enhancer protein। एनहांसर जीन ने किसको प्रोड्यूस किया? एनहांसर प्रोटीन को, ठीक है। एनहांसर जीन ने एनहांसर प्रोटीन को प्रोड्यूस किया, विच बाइंड्स टू दी, जिसकी बाइंडिंग किससे हुई? इंटीग्रेटर, विच इज एक्चुअली अ रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन बाइंडिंग होने की वजह से सिंथेसिस हुई किसकी? एक्टिवेटर। एक्टिवेटर की सिंथेसिस होने की वजह से बाइंडिंग हो गई एक्टिवेटर की, किस पे? एक्टिवेटर जाके बाइंड हो गया हमारे पास, एक्टिवेटर गो एंड बाइंड्स टू दी ऑपरेटर, जिसे आप अभी नाम क्या दे रहे हो? रिसेप्टर। और उसकी बाइंडिंग होते ही स्विच ऑन स्टेट। अब मुझे बताओ, अगर रिप्रेस साइलेंसर जीन बनता तो क्या होगा? टेल मी गाइस, इफ साइलेंसर जीन इज देयर देन व्हाट विल हैपन? राइट जोया? अगर हम साइलेंसर जीन बनाएंगे तो साइलेंसर जीन साइलेंसर प्रोटीन बनाएगा, वो जाके इंटीग्रेटर पे बाइंड होगा। इंटीग्रेटर पे बाइंड होने के बाद अब हमारे पास इंटीग्रेटर पे जैसे ही बाइंड हो जाएगा, राइट, इट विल बी द प्रोसेस जहां पर हमारे पास कहेंगे रेगुलेटर जीन, वो सिंथेसिस किसकी करेगा? एक्टिवेटर या रिप्रेसर? सिंथेसिस किसकी हो जाएगी? रिप्रेसर। अगर रिप्रेसर बनेगा, राइट, रिप्रेसर बनेगा तो रिप्रेसर जाके कहाँ बाइंड हो जाएगा हमारे पास? ऑपरेटर, राइट, दैट इज रिसेप्टर। अगर रिसेप्टर पे बाइंड हो गया तो प्रोसेस क्या हो गया मेरे पास? स्विच ऑन या स्विच ऑफ? इट विल कंडीशन क्रिएट अ कंडीशन कॉल्ड एज द स्विच ऑफ स्टेट। अब समझ आ गया सबको मैकेनिज्म, राइट? दिस इज इन द केस ऑफ द यूकैरियोट्स। ये यूकैरियोट्स के अंदर केस होता है।
Okay, is it fine now? Right, वो एकदम ही नेट चला गया था, इसी वजह से the problem arises. Right. Okay, guys, now clear everyone? Right, yes, completed. Okay, now यहाँ तक का point clear हो गया सबको? Right, that explains about the complete, which is called as the Britton-Davidson gene battery model. जो हमने यहाँ पर state किया, that completely explain about this complete model as a gene battery model. Fine, right, यहाँ तक का point clear है? Understood यहाँ तक अच्छे से? Okay, everyone. Okay, everyone. Right. Again, in between the net connection is creating a problem. Right. Yeah. Okay, now is it being fine? Yes, guys. Are you able to hear me? Yes, sir. Good. Fine. Okay, वो आज थोड़ा बारिश वारिश हुई ना तो मुझे लगता है नेट का ही प्रॉब्लम चल रहा है इस वजह से. Okay, guys. So back to the topic again.
वापस आते हैं टॉपिक पे। हाँ जी, तो जीन बैटरी डेविडसन मॉडल क्लियर है सबको, राइट? तो जीन बैटरी मॉडल एवरीवन कंप्लीटेड यूकैरियोट्स के अंदर हम कैसे पढ़ते हैं इस स्टेट को, गुड, राइट? सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस बच्चा, जो हमने यहाँ तक टास्क किया, राइट? कि हमारे पास स्विच ऑन स्टेट में हमारे पास चला जाएगा, स्विच ऑन एंड ऑफ स्टेट में हम जैसे भी इसको देखेंगे एनहांसर साइलेंसर की वजह से, राइट? तो इतना ध्यान रखना है दैट दे आर बीइंग द 5 सेट ऑफ द जीन्स, right, that will completely go for the whole function which is being defined, right? These in the syllabus, हाँ बच्चे, right, ये बस इतना ही है सिलेबस में, ठीक है? नीट के सिलेबस में, आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं, ठीक है? नीट के सिलेबस में वहाँ में करना पड़ेगा, राइट? ओके एवरीवन, राइट? सो अब स्टार्ट करें टॉपिक के साथ। ओके गाइस, नाउ अब हमने कहा नीट एनसीईआरटी ने एक स्पेसिफिक लाइन लिखी हुई है that in the case of the eukaryotes के अंदर, yes, how corepressor was formed, corepressor बच्चा हमारे पास फॉर्म होता है, right, when the tryptophan is there in the excess condition, then only tryptophan itself work as a corepressor। तो tryptophan तो corepressor की तरह काम कर रहा है, right? तो corepressor बाहर से एक मॉलिक्यूल, मींस बाहर का मतलब ओपरॉन की बाहर से एक मॉलिक्यूल बना, जो ओपरॉन की वजह से बना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ओपरॉन ने तो एंजाइम बना के छोड़ दिया ना, उस एंजाइम का काम था ट्रिप्टोफैन बनाना, और ट्रिप्टोफैन जब एक्सेस में गया तब कोरिप्रेसर बना, अदरवाइज नहीं। अब समझ आया अच्छे से पॉइंट? फाइन, राइट? तो ऑन दैट ग्राउंड वी विल डिफाइन। ओके एवरीवन, नाउ इन द केस ऑफ द यूकैरियोट there is a process of the organ differentiation, and development। organ का differentiation और development अभी हमारे पास कैसे वर्क कर रहा है? लेट अस सपोज बेटा मेरे पास मैंने एम्ब्रियो कंडीशन ली, एम्ब्रियो के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ सेल्स है, एंड ईच सेल, हर सेल के पास डीएनए है, हर सेल के पास जीन्स है, ठीक है? क्या हर सेल के अंदर सारे जीन्स एक्सप्रेस करते? डू ऑल जीन्स एक्सप्रेस इन एवरी सेल? ट्रू और फॉल्स? राइट, नो, वेरी गुड। तो हमने कहा सारे तो नहीं करते ना, राइट? तो ऑन दैट बेसिस हमने कहा दे गो फॉर अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन वेयर on transcription level some genes get silenced, कुछ जीन साइलेंस हो जाते हैं, and some genes express। That's why we say, very important point, that degree of expression and type of expression varies in, इसमें वेरी करेगा हमारे पास यूकैरियोट्स, राइट? तो यूकैरियोट्स में वेरी करेगा, एक्सप्रेशन का क्या डिग्री है और एक्सप्रेशन का क्या टाइप है, राइट? ये सब हमारे पास यूकैरियोट्स में वेरी करता है। यूकैरियोट्स में आप कितना लेके चल रहे हो, किस डिग्री से आप एक्सप्रेशन कर रहे हो, क्या टाइप ऑफ एक्सप्रेशन कर रहे हो आप, दैट ऑल गेट वेरी इन दी यूकैरियोट्स। वो सब कुछ यूकैरियोट में वेरी करता है। अब समझ आया पॉइंट सबको अच्छे से, राइट? सो ऑन दैट बेसिस हम इसे डिफाइन करते हैं, इट्स बीइंग द प्रोसेस जहाँ पर डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन और टाइप ऑफ एक्सप्रेशन डिफाइन करेगा। लेट्स सपोज अगर मैं एक स्टेटमेंट कहूँ, द जीन फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। नीट की आई स्टेटमेंट में 2017 की, राइट? Genes for insulin production is present in all the cell, but expression of insulin is limited to pancreatic cell only. True or false? समझ आई कंडीशन, राइट? 46 क्रोमोसोम तो हर सेल में है ना। अगर 46 क्रोमोसोम हर सेल में, तो 30,000 जीन्स भी हर सेल में। लेकिन क्यों एक सेल में इंसुलिन बन रहा है, एक सेल में जीएनआरएच बन रहा है, एक सेल के अंदर कोई और पेप्सिन का एंजाइम बन रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, राइट? बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। टाइप ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब बेटा किसी एक में साइलेंस्ड है,
किसी एक में आपका इंड्यूस्ड है, किसी एक के अंदर आपका एनहांस्ड है, राइट, वो डिफाइन करेगा ना। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, राइट, तो मैं कहूंगी यहाँ पर ग्लाइकोलिटिक एंजाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेसिंग है, वो तो हर जगह बन गया, तो उनका एक्सप्रेशन तो कैसा है, दैट फॉलो द एवरी डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। अच्छा, जस्ट एक सेकेंड वेट करना। हाँ जी बेटा, राइट। तो अब हमने यहाँ पे डिफाइन किया दैट डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन और टाइप ऑफ एक्सप्रेशन यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास वेरी करेगा, राइट। ये पॉइंट सबको क्लियर है, राइट। अच्छा, अब इसी का मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, इसी में एक जीन का मैं एग्जांपल लूंगी, राइट। द वन टाइप ऑफ द जीन दैट आई एम टेकिंग एज एन एग्जांपल इज ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स कौन से होते हैं? कैन आई से दे आर द ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स। अभी शायद ह्यूमन हेल्थ डिसीज अगर पढ़ रहे हो तो वहां पर डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में, राइट। हमारे सेल्स के अंदर, इन सेल, ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट है इनएक्टिव फॉर्म में, जिन्हें हम नाम देते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। इनएक्टिव ऑन्कोजीन्स, इनको हम नाम देते हैं इनएक्टिव ऑन्कोजीन्स, ठीक है, जो हमारे पास प्रोटो ऑन्कोजीन्स। अंडर द स्टिमुलस ऑफ म्यूटेजन, और अगर एक म्यूटेजन भी याद हो तो हमने किया था अंडर द स्टिमुलस ऑफ द म्यूटेजन एज इंटरकैलेटिंग एजेंट, नाइट्रस एसिड, यूवी रेडिएशंस, ये पढ़े हैं ना। इसके अंडर प्रोटोऑन्कोजीन्स का इंडक्शन हो जाता है, इंडक्शन और एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन्स, एंड जैसे ही इनका इंडक्शन या एक्टिवेशन होता है, इट रिजल्ट्स टू द एक्टिव ऑन्कोजीन्स। और एक्टिव ऑन्कोजीन्स आते ही हमारे पास क्या हो जाता है, कार्सिनोजेनिक transformation of cell such that cell is not able to, right, cell क्या नहीं कर सकता, carcinogenic transformation की वजह से, right, not able to have the property, right, of the contact inhibition की property का loss हो जाता है, going for the multiple rapid divisions करे जा रहे, right, तो वो process हमारे पास चल रहा है, जिसकी वजह से हमने इसे नाम दे दिया ऑन्कोजीन्स। याद रहेगा ये concept ऑन्कोजीन्स, everyone completed, clear है यहाँ तक, right। ऑन्कोजीन्स के जैसे ही सेकेंड सेट ऑफ जीन्स है हमारे पास, होमियोटिक जीन्स। होमियोटिक जीन्स हमारे अंदर नहीं है, दे आर फाउंड इन ड्रोसोफिला, राइट। ड्रोसोफिला में, इसीलिए हमें याद करने पड़े, और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन आ चुका है इनसे, और वही एक स्टेटमेंट भी याद करनी है, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी पैकेट में दे रखा है सब फालतू है, राइट। होमियोटिक जीन्स, होमियोटिक जीन्स क्या है बेटा? They are actually responsible for organ transformation. They are the organ transformation का main function है, organ transforming genes है। That is suppose, let's suppose organ 1 is present at a site 1. Because of the activation of HA, that is called homeotic genes, it will cause development of organ 2. Organ 2 की development करते हैं, right, so they are just responsible for organ transformation. होम्योबॉक्स इनके डोमेन्स होते हैं, होम्योटिक जीन्स हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि विंग्स की जगह लेग्स की डेवलपमेंट हो जाना, राइट, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट की जगह दूसरे पार्ट की डेवलपमेंट हो जाना, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इन द ड्रोसोफिला, राइट, कॉज डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ another organ after transforming native organ। जो नेटिव का मतलब जहाँ पहले वहां जो ऑर्गन होना चाहिए था उसकी जगह उसको ट्रांसफॉर्म करके एक दूसरे ऑर्गन की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज द होम्योटिक जीन। एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक, राइट। तो ऑन्कोजीन्स इन द केस ऑफ द ह्यूमन, होम्योटिक जीन्स इन दिस पर्टिकुलर केस,
एंड द थर्ड वन जो ह्यूमन के अंदर वापस से है, दैट इज कॉल्ड जंपिंग जीन्स। इनके बारे में भी ज्यादा नहीं पढ़ना, बस नाम आ जाता है क्वेश्चन में। और कॉल्ड ट्रांसपोजोन्स, पढ़ा है ट्रांसपोजोन्स, शायद मैंने पहले कभी बताया होगा आपको। जंपिंग जीन्स और ट्रांसपोजोन्स, राइट। जंपिंग जीन्स और ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं? दे चेंज देयर लोकेशन, राइट, यस एग्जैक्टली, दे आर द मोबाइल जीन्स ऑफ डीएनए which can change their location, अपनी लोकेशन को चेंज कर लेते हैं from site 1 to site 2 over same DNA, उसी डीएनए के ऊपर साइट 1 से साइट 2 पे चले जाते हैं, राइट। अब बेटा ये इनका ना सानिया, दिस इज द वन जो इसका पूरा एक मैकेनिज्म है जो मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहती ना, आपको चाहिए डिटेल में बेटा वो, राइट, कि ऑर्गन का ट्रांसफॉर्मेशन एक से दूसरे में कैसे हो जाता है हमारे पास। दिस इज बेसिकली होम्योडोमेन प्रोटीन्स हैं स्पेसिफिक, जिनको अगर इंडक्शन मिलता है किसी भी रिस्पॉन्स, किसी भी स्टिमुलस के थ्रू, राइट, और वो स्टिमुलस हार्मोनल स्टिमुलस है, राइट, तो बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, राइट, इट इज गोइंग टू फॉलो दिस कंडीशन कि ये बेसिकली होम्योडोमेन प्रोटीन्स हैं इसके जो एक्टिव हो जाते हैं, जो होम्योटिक बॉक्स को, होम्योबॉक्स एक है बेसिकली, होम्योटिक बॉक्स को एक्टिवेट करते हैं और वो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कराते हैं, राइट। जो दैट्स अ कंप्लीट डिटेल्ड मैकेनिज्म, बट यू डोंट हैव टू डू फॉर इट, नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जंपिंग जीन्स देखो है क्या हमारे पास। जंपिंग जीन्स आर बीइंग द वन, लेट्स सपोज मैंने ये डीएनए का सेगमेंट देखा, इस डीएनए के सेगमेंट पे मेरे पास यहाँ पर लोकेटेड है जीन 1, यहाँ है जीन 2, यहाँ है जीन 3। अब ये जीन 1 क्या करेगा? सबसे पहले ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा ट्रांसपोजेजेस। ट्रांसपोजेजेस एंजाइम आर दी एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम इस जीन को हटाएंगे और इसको जीन 2 और जीन 3 के बीच में शिफ्ट करा देंगे। दैट इज स्वैपिंग ऑफ द सेगमेंट्स। सेगमेंट्स की स्वैपिंग होगी कि जो यहाँ सेगमेंट थी वो यहाँ पर आ गई और जीन 1 वहां चला गया, बिकॉज ऑफ विच it caused change in position gene, right, that gene is called as a jumping gene or called transposons। इस जीन को हम नाम देते हैं ट्रांसपोजोन्स और we name it as the jumping genes। point clear? understood everyone? Here सारी कैटेगरीज होम्योटिक जीन्स। अच्छा एक चीज और बताओ, राइट, लैक ZYA आर कॉन्स्टिट्यूटिव और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन? लैक ZYA आर कॉन्स्टिट्यूटिव और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, वेरी गुड, राइट। ट्रिप E to D, ट्रिप E to A आर कॉन्स्टिट्यूटिव और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, मुझे लग ही रहा था कॉन्स्टिट्यूटिव आंसर देने वाले। कॉन्स्टिट्यूटिव कैसे? Are they expressing every time and never in the control of any regulator? या किसी रेगुलेटर के कंट्रोल में नहीं है? है ना रेगुलेटर के कंट्रोल में, रिप्रेसर काम कर रहा है ना, राइट, तो हमारे पास आ गया है ना उसके अंदर, तो वी सेज इट इज अंडर द कंट्रोल, बच्चे इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रेगुलेटर। अगर रेगुलेटर के कंट्रोल में है तो ऑब्वियस सी बात है दे आर वर्किंग एज द नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, ठीक है बेटा मंशिका, राइट। हमने कहा हमारे पास वाई दे आर कॉल्ड एज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, इसी वजह से क्योंकि हमारे पास ये एक्चुअली में, राइट, वर्क नॉर्मली भले ही आपका एक्सप्रेस कर रहे हैं हर टाइम, लेकिन अंडर द एक्टिवेशन ऑफ को रिप्रेसर तो काम कर ही रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि को रिप्रेसर आया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो काम करेंगे, राइट, यू कैन नॉट स्टॉप अस, ऐसा तो काम नहीं हुआ ना, राइट, दैट्स व्हाई दे वर्क एज द नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। आप समझ आए यहाँ तक का पॉइंट, राइट। सो दिस इज व्हाट वी स्टेटेड ओवर हियर इन दिस होल कैटेगरी, राइट। अब आपका लास्ट चैप्टर का पार्ट स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, व्हिच आई विल स्टार्ट इन द कमिंग क्लास। अब मैं आ जाऊंगी मेंडलिज्म पे, राइट। जंपिंग जीन, जंपिंग जीन्स आपके बेटा ट्रांसपोजोन्स हैं, दे आर द मोबाइल एलिमेंट ऑफ द डीएनए जो अपनी पोजीशन को, लोकेशन को एक साइड से दूसरी साइड पे चेंज करते हैं, right, so they change their location from one side to the another side, that's basically defined as the Mendelism, ठीक है।
प्रोटो ऑन्कोजीन्स, राइट, अच्छा ओपन करना, फाइन, राइट, प्रोटो ऑन्कोजीन्स हमारे पास ये हैं बच्चे, right, they are the inactive oncogenes under the stimulus of the mutagen, right, they will result in the induction or activation हुआ हमारे पास proto oncogenes का, and need to this, right, why they need, they are non repetitive segments, right, they have a property of this, इनके property है कि they will change their location, right, so that's why they will show this property that they can change their location, and they are the non functional genes, functional नहीं है, non functional gene है, तो इनके इधर उधर होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, right, कंप्लीट। अच्छा अब एक लाइन लिखो इसी के नीचे, जंपिंग जीन्स और ट्रांसपोसोन्स, jumping genes or transposons are heterochromatin segment. Jumping genes or transposons are heterochromatin segments which change their location. Heterochromatin segment which change their location and firstly reported by McClintock while working in maize. Firstly reported by McClintock by working in maize, after working using maize, मेज को यूज करते टाइम इन्हें पता चला था, मेज के अंदर सबसे पहले फाइंड हुए थे, क्वेश्चन यही आता है, हेट्रोक्रोमैटिन का एग्जांपल या इसकी डिस्कवरी पे क्वेश्चन, किस प्लांट में सबसे पहले मिले थे, दैट्स मेज, मैक्लिंटॉक आफ्टर वर्किंग विद मेज और आफ्टर वर्किंग यूजिंग मेज, समझ आ गया यहाँ तक का पॉइंट, अंडरस्टूड, राइट, चलो, राइट, आई विल से वंस अगेन, transposons or jumping genes are the heterochromatin segment which change their location and firstly reported by McClintock, Barbara McClintock इनका नाम है, right, Barbara McClintock in maize, ठीक है, right, now let's come up to the, ठीक है, right, first part of the today's class, हाँ जी, अब सबसे पहले डाउट कोड कर दो अपने जेनेटिक्स वाले डाउट, बार बॉडी में एक तो डाउट था, फर्स्ट पार्ट कहाँ से था, ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये था बेटा, ट्रिपोप्रो, ओके, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास, ओके एवरीवन, राइट, सिनेस्ट्रल डेक्स्ट्रल, क्या क्वेश्चन है, मदर कैरेक्टर इनहेरिटेड फर्स्ट के डी सिनेस्ट्रल टाइप ऑफ क्रॉसओवर, एक्सप्लेन इट अगेन, ओके, चलो अब यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं इसमें, सबसे पहला डाउट आया यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पे, मैंने एक कैरेक्टर, एक वर्ड यहाँ पर बोला था बेटा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज मैटरनल इनहेरिटेंस, it show genotype of mother control phenotype of progeny के phenotype को कंट्रोल कर, मीन्स अगर मैंने यहाँ डेक्स्ट्रल वाला लिया था, कैपिटल डी क्रॉस विद स्मॉल डी, तो ये मेरे पास डेक्स्ट्रल और ये मेरे पास सिनेस्ट्रल, अब इस डेक्स्ट्रल और सिनेस्ट्रल कंडीशन में we simply say हमारे पास प्रोजेनी है कैपिटल डी स्मॉल, इसका जीनोटाइप कंट्रोल नहीं करेगा, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, स्मॉल डी बिकॉज यू हैव टेकन मदर एज दिस, और स्मॉल डी क्या देगा मुझे, सिनेस्ट्रल, अब समझ आया, राइट जो है, फाइन, अब अगर मैंने सेल्फिंग कर दी बेटा, तो सेल्फिंग का मतलब कैपिटल डी क्रॉस विद कैपिटल डी स्मॉल, अगर कैपिटल डी क्रॉस विद कैपिटल डी कर दिया
तो मेरे पास प्रोजनी आ गई है। अब मदर का फिनोटाइप नहीं देखना, मदर का जीनोटाइप देखना। मदर का जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी, इट इज इक्वल टू कैपिटल डी स्मॉल डी, इक्विवेलेंट टू कैपिटल डी स्मॉल डी, इक्विवेलेंट टू कैपिटल डी स्मॉल डी, इक्विवेलेंट टू कैपिटल डी स्मॉल डी। अब कैपिटल डी स्मॉल डी क्या दे सकता है? डेक्स्ट्रल। ये भी क्या दे सकता है? डेक्स्ट्रल। ये भी क्या देगा? डेक्स्ट्रल। एंड दिस वन आल्सो डेक्स्ट्रल। अब क्लियर हुआ जोया? तो मदर का फिनोटाइप नहीं देखना, मदर का जीनोटाइप देखना, ठीक है? मदर कैरेक्टर इनहेरिट नहीं हो रहा, मदर का जीनोटाइप इनहेरिट हो रहा है जो फिनोटाइप दे रहा है, राइट? तो हमने कहा मदर जीनोटाइप डिफाइंस phenotype of progeny। बट मैम क्या आपने सेंटिंग करी है? वहाँ पे तो सिनिस्ट्रल आया था पहले। बेटा सिनिस्ट्रल फिनोटाइप है ना, लेकिन उसका जीनोटाइप क्या? कैपिटल डी स्मॉल डी है ना। उसने कैरी तो कैपिटल डी स्मॉल डी किया, वो इक्विवेलेंट था स्मॉल डी के। ओके मैम। ठीक है, आपको जीनोटाइप देखना है, आपको फिनोटाइप नहीं देखना। यू डोंट हैव टू सी द फिनोटाइप। भले उसका सिनिस्ट्रल था, नो डाउट ओवर देयर, राइट, लेकिन उसका अभी जीनोटाइप जो क्रॉस से बना है वो तो कैपिटल डी स्मॉल डी है ना। ठीक है, अब समझ आया पॉइंट? राइट, नाउ द नेक्स्ट वन, इसके बाद टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो अब आ जाते हैं टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर। लेट मी टेक एन एग्जांपल, मैं वहीं पर तीनों समझा देती हूँ। बार बॉडी एंड बाय स्पॉट। ओके, ए बी सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, अब एक एक करके ध्यान से सुनना। ए और इसके बीच में हमने क्रॉसओवर किया, दैट्स अ सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन ए एंड बी। अब मैंने क्रॉसओवर किया तो कैपिटल ए टर्न डाउन स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। ठीक है, now I say we will perform a single crossover between B and C। अब अगर B and C में क्रॉसओवर करना है तो A B पूरा लो, फिर नीचे जाओ, फिर लो। तो A B स्मॉल C स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल C। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट हो गए मेरे पास। इसके बच्चे सिंगल क्रॉसओवर। मैंने अभी रिकॉम्बिनेंट वाले दिखाए हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स। पेरेंटल वाले तो ऐसा सच आ जाएंगे ना ऊपर से। अब मैंने कंसिडर की कंडीशन, सेम कंडीशन ये, लेकिन अब मैं डबल क्रॉसओवर बनाऊंगा। नाउ आई विल कंसिडर डबल क्रॉसओवर इन ए बी एंड सी, तीनों के। अब अगर मैं डबल क्रॉसओवर कंसिडर करती हूँ तो दिस, राइट, लेट मी टेक, यहाँ से गए यहाँ पर आए, ओवर टू दिस, दिस टू दिस, दिस, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, दे आर द डबल क्रॉसओवर। ठीक है अंकुर, क्लियर बच्चे? राइट, टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर, राइट, कैसे कैसे हम पढ़ते हैं। अब 4 लगा लो जीन, 5 लगा लो जीन, ऐसे ही शो करते चले जाओगे, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं बार बॉडी पे कंसेप्ट पे। और किसी को भी कोई डाउट? बार बॉडी एंड वाई स्पॉट। हमने कहा बच्चे बार बॉडी हमारे पास क्या होता है, राइट, व्हेन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम बिकम हेट्रोक्रोमैटिन, राइट। ये हमने कहा यहाँ पर इसका यूक्रोमैटिन का पार्ट इसमें चेंज हो गया, हेट्रोक्रोमैटिन, और वो भी किसके लिए? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, राइट, दैट इज डिफाइंड एज द बार बॉडी, मींस 44 प्लस XX। तो अब इसमें बार बॉडी कितनी हो जाएंगी मेरे पास? 1।
एक x होगा ना, राइट, बट आई राइट द कंडीशन एज 44 प्लस एक्स एक्स वाई, यहाँ पर बॉड बॉडी कितनी होंगी, टेल मी द आंसर, वापस 1, किसके अंदर, मेल के अंदर, किसके अंदर, फीमेल। अंडरस्टूड दिस पॉइंट, कंप्लीटेड यहाँ तक, राइट, एंड वाई स्पॉट इज दी, राइट मंशिका, वाई स्पॉट इज दी वाई क्रोमोसोम जीन्स, and बच्चे Y chromosome Dhananjay genes are called as the Hollandric genes, and Hollandric genes are the one which follow Y-linked inheritance. Y-linked inheritance का मतलब transmission from male to male, that is from grandfather to father, father to son. Daughters, mother don't have that particular character. Right? Example लेते हैं हम इसके अंदर hypertrichosis का. Like we will say that the presence of extra hairs on the ear pin are present in the father, then also present in the son, and then also present in the grandson. That will follow the complete Hollandric inheritance, Hollandric gene inheritance. Right? ये हमारे पास follow करें. Right? Completed. अच्छा, उसके बाद sex limited inheritance. अच्छा, अब sex limited inheritance क्या होते हैं? We say sex limited traits are the one बचा which are present in both the male and female. Present दोनों में है, male और female, but expression is limited to the one sex only. Right? So we say expression limited to one sex. Right? A one sex से limited example. Right? Memory gland development. अब breast तो दोनों में है ना, male और female में, लेकिन डेवलपमेंट किसके अंदर है, ओनली इन द केस ऑफ द फीमेल. मेमोरी ग्लैंड किसमें डेवलप होगी, ओनली इन द केस ऑफ द फीमेल. साइज इंक्रीज, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क ग्लैंड डेवलपमेंट, सब कुछ फीमेल में हो रहा है, मेल में तो हो नहीं सकता. राइट, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सेक्स लिमिटेड ट्रेट. राइट, सो वी विल से इन द कंडीशन called memory gland development in the female, while at the same time, right, in the case of the male, development of the beard and mustache naturally cannot present in the female, right, until unless there won't be any particular disorder. Right, otherwise हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास कौन सा ट्रेट हुआ, सेक्स लिमिटेड ट्रेट. अब समझ आया पॉइंट यहाँ तक. राइट, यस अंकुल, कौन सा कंसेप्ट है ये. अच्छा, एक्स और एन एलोपॉलीप्लॉइडी का ही कंसेप्ट है. राइट, अब देखो यहाँ पर हमने एलोपॉलीप्लॉइडी जब किया था तो रिमेंबर गाइस, हमने ट्रिटिकल बनाया था. ट्रिटिकल लेट सपोज मैंने कहा A10 है मेरे पास, ऑक्टाप्लॉइड वैरायटी में लेके चलती हूँ. अब ऑक्टाप्लॉइड वैरायटी क्योंकि दो के फ्यूजन से बना है, तो मेरे पास वीट जो मैंने लिया था वो हेक्साप्लॉइड था, और जो मेरे पास राई था वो तो डिप्लॉइड है, तो ये आ गया मेरे पास. तो आई हैव द कंडीशन इन दिस, किसके अंदर मेरे पास 6 जो कॉपीज है वो A की है, 2 2 4 6, और ये मेरे पास अगेन B की है. ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कहा बच्चे, ये जो मेरे पास है इसके अंदर वैल्यू, बेसिक वैल्यू, इफ आई से बेसिक वैल्यू मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम. हाँ बच्चे, एलोपॉलीप्लॉइडी तो बता रही हूँ मंशिका. राइट, वी से नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेट. एक सेट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो अगर मैं सिंपल कहूँ, मेरे पास A10 है और 8 × 7 = 56 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 7. ठीक है, अब मैंने कहा हैप्लॉइड वैल्यू कितनी है, तो हैप्लॉइड वैल्यू तो मेरे पास हाफ होता है ना, हाफ ऑफ द टोटल. तो हाफ ऑफ द टोटल मेरे पास कितना हो गया, 4n. राइट, दैट इज n की वैल्यू. अगर मैं 4n यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास 4n कितना आ गया यहाँ पर, 4n = 56 का हाफ कितना हो गया, 28. तो n = 20. अब समझ आ गया. ठीक है, राइट. एलोपॉलीप्लॉइडी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द हाइब्रिड मंशिका, जहां पर आप कहते हो आपने राई और वीट का एक बेसिकली हाइब्रिड बनाया, और उस हाइब्रिड में आपने दोनों के ट्रेट्स दिए और उनको मिक्स कर दिया. दैट्स एन इंटरजेनिक हाइब्रिड. आपने एक इंटरजेनिक हाइब्रिड की फॉर्मेशन की. राइट, कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट. एन और एक्स की वैल्यू यहाँ तक समझ आ गया अच्छे से सबको. क्लियर विद दिस? और कोई पॉइंट? तो यहाँ तक का. अब बाकी के डाउट्स अगेन इन द कमिंग क्लास. पूरा चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चंस तो नहीं कर पाया आज, आपके डाउट्स में टाइम चला गया, कोई बात नहीं. राइट, तो नेक्स्ट वीक अगेन वी आर डूइंग द क्वेश्चंस फॉर दिस एंड विल कंप्लीट दिस चैप्टर. सबसे पहले चैप्टर खत्म कर देंगे. राइट, और फिर आपका स्टार्ट कर देंगे राइट विद द पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, राइट. ओके एवरीवन, राइट. सो कंप्लीट टिल हियर, फाइन.
right, and complete the whole chapter molecular biology of inheritance also, क्योंकि अब इसका भी recap शुरू होगा. So next week complete principle of inheritance and variation, everything, right, everything for the principle of inheritance and variation. Fine, ताकि next week में mol bio भी खत्म हो जाए और ये chapter भी पूरा हो जाए हमारे पास. Okay everyone, so we'll end up the class over here, right, so take care, bye bye, enjoy, right, study.